The much-awaited demolition of Noida's Supertech Towers is finally done. India Today's cameras captured the clearest full 360-degree view of the demolition. Nine seconds is all it took for the two Supertech Towers, Apex and Kayan in Noida Sector 93A to come down. India Today had deployed high-tech, high-definition cameras that captured the full extent of the demolition. Here's a look at the long shot of the moment the explosion was triggered. Blink and you miss it. 9 seconds to bring down 32 floors. So India Today's, in fact, cameras slowed down that stunning demolition. Here's a frame-by-frame look at that demolition. The towers brought down like a pack of cards. Wait a minute. Here's another view of the demolition. India Today's state-of-the-art technology that brings to you never-before-seen images of the explosion and its aftermath. What was left after 9 seconds was a huge plume of smoke and dust. For the first few minutes, there was just dust everywhere, and as it settled, the empty space where two Supertech towers once stood. The demolition, which reduced the two towers to ashes, has caused a sudden spike in air pollution, with the level of particulate matter in the air going up. Demolition done, the big task ahead is to clear the debris. Soon after, water sprinklers were brought in to remove the dust from plants, trees and neighbouring structures. Fire brigades too, in fact, have been pressed into action to sanitize and clear the area. While India Today cameras captured the demolition in its clearest view, an ATS Green Village resident had placed a camera in his balcony to record the explosion, and this is what the balcony camera recorded. Floors of the Twin Towers collapsing one by one. This is the closest view of the demolition. This is what is left of the Twin Towers. 32 floors reduced to 80,000 tons of debris. Clearing this will be a big task, and it will take 3 months to clear this mess. The demolition comes at a cost of 20 crore rupees.
Residents of Emerald Court who had been evacuated, the local residents were seen celebrating after the demolition took place. In Parshvanath Prestige Society, people were seen dancing and beating drums while expressing their happiness over the demolition of the illegal towns. India Today's Arpita Arya was one of the first reporters to reach the demolition site. Here's a detailed ground report. जो हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये ट्विन टावर का मलबा जो आप इतना ऊंचा बिखरा हुआ यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये तस्वीरें इस वक्त की बड़ी ऐतिहासिक ये इमारत जिसको धराशाही कर दिया गया है। 9 सेकंड से भी कम का एक तरीके से कह सकते हैं वक्त लगा और ये पूरी इमारत जो है वो ढह गई है। हालांकि अब मलबे को साफ करने का काम देखिए यहाँ पर चलता हुआ इस वक्त आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरीके के मलबा 3 इमारत तक जैसा कहा जा रहा था कि इमारत जो है मलबा जो गिरा हुआ नजर आएगा। अब इसको समेटने के लिए अब ये माना जा रहा है कि 3 महीने का वक्त जो है वो लग सकता है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है यहाँ पर आपको नजर आ रही है। पानी का छिड़काव यहाँ पर किया जा रहा है क्योंकि जो धूल का गुब्बार निकला है उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी हो रही है। आप देखिए जैसा कहा गया था कुछ उसी अंदाज में ये इमारत वाटरफॉल तकनीक के हिसाब से गिरी हुई नजर आ रही है। अगल बगल जो आप चादर देख रहे हैं जो इमारतों में पड़े हुए हैं उनका कलर यहाँ पर जरूर बदल गया है, लेकिन ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये आज तक उस जगह पर पहुंच चुका है जहां से हम आपको मलबे की तस्वीर दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त मलबे की ये तस्वीर। हालांकि यहाँ पर देखिए पानी के टैंकर जो है वो भी पहुंच रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें ये इतना मलबा है 80 टन बताया जा रहा है जिसको समेटने में अभी तकरीबन 3 महीने का वक्त लगेगा। तो एक लंबा वक्त लगने वाला है, लेकिन तैयारी अभी यही है कि जो यहाँ से धूल का गुब्बार निकला उसे यहाँ पर समेटा जाए। टीमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं धूल का गुब्बार अभी भी उठता हुआ यहाँ तस्वीरों में नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर पानी की छींटे भी पर डाले जा रहे हैं और ये धुआं अभी भी यहाँ पर निकलता हुआ सांस लेने में थोड़ी दिक्कत यहाँ महसूस होते हुए, क्योंकि अकल यहाँ देखिए, अच्छा दिखाइए, ये देखिए किस तरीके से पानी का छिड़काव हो रहा है जिसके बाद ये धुआं जो है ये और निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पानी की बौछार हो रही है। आप देखिए ये पानी की बौछार इस तरफ भी हो रही है जिधर हम खड़े हैं और धुआं यहाँ पर नजर आ रही है। आप देखिए अंदाजा लगा लीजिए 3 मंजिला इमारत के बराबर यहाँ पर मलबा इस वक्त नजर आ रहा है। टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जरा आप देखिए, यहाँ पर ये ट्विन टावर उसको तोड़ दिया गया है, धराशायी कर दिया गया है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए धुआं धुआं उठता हुआ पानी की छींटें बौछारें पड़ते हुए इस वक्त ये तस्वीरें धुआं ही नजर आ रहा है आपको चारों तरफ। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां ये इमारत जमींदोज हो चुकी है। धुआं उठता हुआ इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। पानी की बौछार यहाँ पर की जा रही है, लेकिन उसके बाद जैसे पानी की बौछार हो रही है धुआं कुछ और उठता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरा मलबा ट्विन टावर अब मलबे में तब्दील हो चुका है। जैसे आप मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर वो इमारत, वो गगनचुंबी इमारत जो भ्रष्टाचार की नींव पर टिकी हुई थी उसे धराशायी कर दिया गया है। 14 सेकंड भी नहीं लगे और ये इमारत जो है वो ध्वस्त हो गई है। ये पीछे आप तस्वीरें देखिए, जो टीमें हैं वो अब इस बात पर लगी हुई हैं क्योंकि यहाँ ट्रक लगाए गए, मलबे को हटाने का काम चल रहा है। कोच्चि में हमने एग्जाम्पल देखा, 6 महीने का वक्त लग गया था वहां से मलबा साफ करने में। यहाँ पर कहा जा रहा है 3 महीने का समय यहाँ पर लगेगा, लेकिन उससे ज्यादा समय भी लग सकता है। सुशांत भी हमारे साथ मौजूद है। सुशांत, जिस तरीके से देखिए पानी की बौछार भी हो रही है, सांस लेना यहाँ दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्योंकि कंक्रीट का धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। अर्पिता, आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि देखिए हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं, ट्विन टावर आपको वहां पर नजर आएगा और वहां से करीबन 400 मीटर की दूरी पर जो पूरा मलबा है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। चारों तरफ मैं अपने कैमरा पर्सन अजय से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि कहां तक ये मलबा जो है वो पहुंचा है। ये पूरा गार्डन एरिया और यहाँ तक मलबा जो है वो पहुंच चुका है और लगातार जो नोएडा प्रशासन है उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि इस मलबे की और जो धूल है
वो लोगों को परेशान न करे, इसके लिए लगातार स्प्रिंकलिंग जो है वो पानी की तरफ से यहाँ पर तमाम एरियाज के अंदर जो है वो लगातार की जा रही है। इसके अलावा मैं अपने कैमरा पर्सन अजय से ये भी कहूंगा कि वो तस्वीरें ये भी दिखाएं कि किस तरीके से जो मलबा ट्विन टावर है वो किस तरीके से धराशायी हो चुका है। लगभग 3 से 4 मंजिल अभी मलबा जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, सड़कों तक ये मलबा जो है वो पहुंच चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से चारों तरफ सड़कों के बाहर जो बाउंड्री वॉल इस ट्विन टावर की थी वो भी पूरी तरीके से डैमेज हो गई है, उसको बाहर तक ये मलबा जो है वो आ चुका है। और तमाम तस्वीरें अगर आप देखेंगे कि नोएडा प्रशासन लगातार अब आगे की तरफ आपको यहाँ पर नजर आएगा। कोशिश यहाँ पर है कि प्रशासन की तरफ से कि इस मलबे को जल्दी से जल्दी यहाँ से क्लियर जो है वो किया जाए। और अभी भी लगातार पानी का छिड़काव इस पूरे एरिया के अंदर जो है वो प्रशासन की तरफ से दिखाई पड़ रहा है। नोएडा का ट्विन टावर जो कि भ्रष्टाचार का टावर था 32 मंजिला, और जो कि भ्रष्टाचार के टावर के नाम से जाना जाता था, आसपास की तमाम बिल्डिंग जिसके बारे में तमाम जो यहाँ पर रहने वाले लोग थे वो चिंतित थे कि कहीं अगर ये डेमोलिशन होता है तो उनकी बिल्डिंग को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, लेकिन वो पूरा बचाव जो है वो हुआ है। और यहाँ पर जो सूझबूझ थी इंजीनियर्स की, जो सूझबूझ थी कंपनीज की, वो साफ तौर पर नजर आई है। और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से ट्विन टावर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। और यहाँ पर आपको तस्वीरें जो है वो एक्सक्लूसिव आज तक पर कि किस तरीके से तमाम चारों ओर मलबा ही मलबा जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है। अर्पिता जी बिल्कुल सुशांत, ये तस्वीरें देखिए हम दिखा ही रहे हैं लगातार ये तस्वीरें, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से काम चल रहा है वो भी हम आपको दिखा ही रहे हैं। यहाँ देखिए टीमें लगी हुई हैं क्योंकि जो इंजीनियरिंग यहाँ पर की गई थी, जिस तरीके की तैयारियां की गई थी और जो कहा गया था वाटरफॉल, उस वाटरफॉल अंदाज में ही ये इमारत ढही है। आसपास की इमारतों को आप देखिए, कोई नुकसान अभी यहाँ दिख रहा है कि नहीं पहुंचा है, लेकिन धूल का गुब्बार एक उठता हुआ उस वक्त नजर आया था। धूल अभी भी हम महसूस कर पा। So that is, of course, the first report that our correspondent Arpita Arya brought to us from the actual demolition site after the implosion.